Yes. So students, don't unmute your mic. Please क्या mute बोला? your mic. Keep your वो mic बताओ mute. Okay. So students, here are some new words which already we have done in a last class. I have told you that write each and every word 3 times with neat and good handwriting. Okay, so in this class, we are going to discuss the new words and their meanings. In this class, you have to listen it carefully. आपको बस सुनना है, याद रखना है, ठीक है? And most important thing is that in our Google Classroom, I have posted one study material. स्टडी मटेरियल मैंने अपने क्लासरूम में भेजा है ना? तो आपको डोंट से यस, जस्ट लुक एट हियर. यस, हियर न्यू स्टडी मटेरियल फ्रॉम पोएम नंबर 1. यू कैन सी. ओके, आपको उस पर क्लिक करना है. वॉट एवर वर्क आई हैव गिवन देयर, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ओनली मैंने वन मैंने टाइम. कर लिया। कोई भी बोलेगा नहीं, जस्ट लिसन. ठीक है? तो students, whatever work I will give or I give you in Google Classroom, you have to write in your notebook properly with good handwriting. Okay, so listen it carefully. Yesterday we have discussed our story. Here it is. I am going to explain new words with their meanings. Also, I will write on the board. You have to note it down in your notebook. Okay, yes, take a pencil in your hand and try to write. First word is there, magic. Magic, M-A-G-I-C, magic. Tricks that, who is talking there? Who is talking there? Bhavesh, please mute your mic. Why are you creating disturbance in the live class? Please mute your mic. आयशा, अभया सिंह, अपने अपने माइक म्यूट कर लो. सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, है ना? मैं देखती नहीं हूँ, क्या बोलूँ? अपना से Tricks that seems to be impossible. ट्रिक्स दैट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल. जो इम्पॉसिबल होता है या लगता है वो पॉसिबल करना, वो ट्रिक्स, उसे मैजिक बोलते हैं. ओके, देन अनदर वर्ड इज गार्डन. अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोइंग flowers. A piece of ground for growing flowers. Gardener, a person who takes care of a garden. दिख नहीं A रहा है। person who takes care of garden. Hurry up, write fastly.
First word is there, magic. It means tricks that seems to be impossible. Tricks that seems to be impossible, यानी जो चीज हमें impossible लगती है वो possible करने की tricks. Okay? Another word is garden, a piece of ground for growing flowers. Done, sir. Hello, sir. Okay, students, the first word is there. I am reading this again. Magic. It means tricks that seems to be impossible. Garden, a piece of ground for growing flowers. Gardener, a person who takes care of a garden. गार्डन की जो देखभाल करता है उस पर्सन को गार्डनर बोलते हैं. A person who teaches students is called teacher. Impossible A person who takes care of patient is called doctor. A person Done, sir. who maintain the law and order. हो गया. Man, IBS. just listen it. Done, sir. I am saying something. मैं कुछ बता रहा हूं आपको. Just listen carefully. A person. कोई भी डन डन नहीं बोलेगा, ठीक है? आपको ये लिखना है. बस 3 ही वर्ड दिए हैं मैंने और 3 वर्ड्स बाकी है हमारे. We will write after this explanation and just speak about that a person who delivers our letters is called postman. Okay, so just like this way, a person who takes care of a garden is called gardener. Write fastly. सर अभी मेरा नहीं हुआ. I am not erasing, I am not rubbing the board. Okay? सर ये ग्राउंड के आगे क्या है? For growing, FOR, growing, GROWING, growing flowers. बच्चों आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर किसी का लिख के नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है? सर नहीं हुआ. सर ग्राउंड का आगे क्या लिखा है? मैं बता रहा हूं, a piece of ground
for growing flowers. Gardener, a ड्राइंग की स्पेलिंग person बताओ who takes care of garden. सर मेरे ऊपर का नहीं हुआ ब्राउन की थोड़ी Playground, an जैसे outdoor area FRAIM for children FROIM to play. बच्चों के खेलने की जगह उसे बोलते हैं प्लेग्राउंड. ओके. Then sun shine. Direct sunlight. हाँ याद है GORD Direct sunlight. फ्लावर Then golden. Shining like a gold. सर ये फ्लावर के नीचे क्या है Gardener. Gardener, a person who takes care of a garden. उसके बाद आपको लिखना है playground. An outdoor area for children to play. Sunshine, direct sunlight. Golden, shining like a gold. सोने की तरह चमकने वाला, उसे golden बोलते हैं. सर आउटडोर के आगे क्या है An outdoor area, 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 area for children to play. सर प्लीज यही काम मैं आपको क्लासरूम में भी देने वाला हूँ, क्लासरूम ऐप में, है ना. अगर किसी का यहाँ मिसिंग होता है, कुछ लिख के नहीं होता है, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो. सर ये ऊपर ही ऊपर ग्राउंड है प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड An outdoor area for children to play. Is it clear? Then sunshine, direct sunlight. Then golden, shining like a gold. outdoor. सर मेरा हो गया उपासना, अपना माइक म्यूट करो. सर मेरा हो गया माइक म्यूट करो. सर मेरा हो गया मैंने क्या बताया बच्चों?
जो आपको अपनी जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो बीच बीच में ऐसे बोलोगे आप तो क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी डिस्टर्ब रहेगी, है ना। रिकॉर्ड हो रही है इसका मतलब आप भी वीडियो में दिख रहे हैं, कौन बोल रहा है, कौन चिल्ला रहा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। इसलिए आप बस अपने माइक म्यूट रखिए और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है। Yes, only these words are here. First word we have written here golden, sorry, playground, an outdoor area for children to play. Sunshine, it means direct sunlight. Golden, shining like a gold. Garden, a piece of a ground for growing flowers. Gardener, a person who takes care of a garden. And magic, tricks that seems to be impossible. Only these words which we have written here, you have to write in your notebook with neat and good handwriting. Try to write fastly. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Don't say done. कुछ भी नहीं बोलना है, मैंने समझाया ना बेटा आपको, ठीक है। Okay, so let's discuss another question and answers which is on page number 7. Just listen it carefully. Here I am going to explain. Yes, okay, I am giving you only 2 minutes for this. 2 minutes दे रहा हूँ आपको। दिव्या, अपना माइक म्यूट रखो। दिव्या, आपको बस यही बातें समझानी पड़ रही है बेटा हर बार। I am giving you only 2 minutes. Just wait. Okay. I think only 2 or 3 students are left to complete this. Yes, Kusum, very good, beta. Kumud Thakre. Okay. Sir, So just turn to the page number 7. There we have 4 questions, which is very simple. Just listen the answers. Okay. वैभव फुलवानी, sit properly. जैसे क्लासरूम में हम बैठे वैसे ही बैठना है, ठीक है। Yes, first question is there. Why did the flowers love the little children? Just listen carefully. What is the answer? Why did the flowers love the little children? The flowers love the little children as they bring
watering cans and water their thirsty roots. watering Don't thirsty say anything. कोटा ऋषिक, मैंने क्या बोला? अपने माइक म्यूट रखने हैं, ठीक है? लिसन, जस्ट लिसन इट केयरफुली. Don't say anything. Don't create disturbance in the class. Why did the flowers love the little children? The flowers love the little children as they bring watering cans and water their thirsty roots. Okay. Next question is there. Why did the birds love the children? Birds बच्चों से क्यों प्यार करते थे? The birds love the children because they used to bring bread for them. बच्चे बर्ड्स के लिए क्या लाते थे? ब्रेड लाते थे, इसीलिए बर्ड्स खुश थे. Third question is there. Name 5 flowers growing in the magic garden. There are 5 names which is mentioned in the story, the magic garden. Tell, there is a question that 5 flowers growing in the magic garden. First, sunflower, rose, pansies, marigold, poppy. Okay, these 5 flowers are growing, were growing in the magic garden. I am repeating this again. Pansies, sunflower, marigold, poppy and rose. Okay, just listen it carefully. I will provide you, I will send you the study material in our Google Classroom so that you can easily write all the question and answers in your notebook. Okay, so don't worry about that. Just listen it carefully, whatever I speak here, whatever I explain here. Okay, just listen. Yes, very good. Fourth question is there. What sounds could the children hear in the garden? What sounds? What sound यानी कौन सी आवाज? कौन सी आवाज बच्चे गार्डन में सुन पा रहे थे, सुन सकते थे? The children could hear the sound of sweet songs of the fairies in the garden. जो फेरीज गाना गा रहे थे, फेरीज यानी परियां, जो परियां उस गार्डन में आती थी, वो जो गाना गाती थी, स्वीट सॉन्ग्स गाती थी, तो वो सारे बच्चे सुन पाते थे. ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The children could hear the sound of sweet songs by of the fairies in the magic garden. जो मैजिक गार्डन में परियां आती थी, उनके गाने बच्चे सुन पाते थे. ठीक है? आफ्टर दिस इट इज टॉक टाइम. इट इज एन एक्टिविटी. Roses. I like roses. Most roses are red. Some are white. Some are yellow. Are there blue roses? I have not seen any blue roses. Have you seen rose? Have you seen roses? Yes, we all know how looks the rose. रोज फ्लावर जो है वो कैसे दिखता है? वी ऑल नो, हम सबको पता है, हम सभी ने देखा है. यू मस्ट हैव सीन. आई हैव ऑल्सो सीन द रोज. ओके, सो हियर अ शॉर्ट स्टांजा इज गिवन दैट आई लाइक रोजेस. मुझे रोज बहुत अच्छे लगते हैं, गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते हैं. मोस्ट रोजेस आर रेड. जो रोज होते हैं वो ज्यादातर रेड होते हैं. रेड रोज. मोस्ट रोजेस आर रेड. सम आर व्हाइट. कुछ रोज जो है वो व्हाइट कलर के भी होते हैं. सम आर येलो. कुछ जो है वो येलो भी होते हैं. आर देयर ब्लू रोजेस? कहीं पे आपने ब्लू रोज देखा है? नो, आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोज. मैंने भी ब्लू रोज अभी तक नहीं देखा है. पर्पल रोज तो होता है, जस्ट लाइक माई कलर ऑफ शर्ट, ऐसा रोज दिखाई देता है, बट ब्लू कलर का रोज जो है वो अभी तक मैंने तो नहीं देखा. ठीक है? सो हियर अनदर क्वेश्चन इज फॉर यू. व्हिच वन इज योर फेवरेट फ्लावर?
learn its name in English. आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? अगर आपको रोज ही अच्छा लगता है, गुलाब का फूल ही पसंद है, तो आप क्या करोगे उसके बारे में? बस 4 लाइनें लिखोगे. I also like rose. So I have written here only 2 to 3 sentences. Just listen it carefully. Okay? Rose is my favorite flower among all flowers. Rose is known as king of flowers. They come in different colors as such as red, white, yellow, pink, purple. A rose plant has small and sharp thorns on its branches, on its stem. Okay, that's it. अगर आपको गुलाब का फूल ही अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे ऐसे ही सेंटेंसेस लिख सकते हो. Okay, this is an activity. Okay, there will be no any question regarding this. Which one is your favorite flower? You have to write only the name of flower. ओके आपको बस अपना जो फेवरेट फ्लावर है उसका नाम लिखना है. आफ्टर दिस ऑल्सो देयर इज एन एक्टिविटी. से अलाउड. लिटिल, LITTLE, लिटिल. हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली. SLIPPERY, स्लीपरी. आपको बस ये वर्ड जो है वो पढ़ने हैं. ओके, लिटिल, हैप्पीली, स्लीपरी. पीपल, PEO, पीपल. हु इज मेकिंग नॉइज? म्यूट योर माइक. PEO, PLE, पीपल. स्लीपीली, SLEEPILY, स्लीपीली. स्लीपीली यानी सोते सोते. थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी. पर्पल, PURPLE, पर्पल. प्राउडली, PROUDLY, प्राउडली. PRETTY, प्रिटी. प्रिटी यानी सुंदर. Okay, so just like this way you have to read all these words which is given on page number 7. Now it is very interesting activity which is given on page number 7. Make a flower scrapbook. Now this is an activity, just I am going to explain this. Look at the board. What you have to do in this activity, it is quite interesting. Just look at the board. Collect 5 flowers. आपको क्या करने हैं? 5 flowers कलेक्ट करने हैं. उसके बाद करोगे आप, put each flower carefully between the pages of an old book. कोई भी एक पुरानी जो नोटबुक है उसमें आप अलग अलग 5 जो फ्लावर्स आपने कलेक्ट किए हैं वो रखोगे. ठीक है? Place some heavy books on the top of the old book. Now I am going to show you here. Just wait a minute. Wait, don't make a noise. सर कॉपी में करना है कि बुक में? सर कॉपी में करना है क्या? सर प्लीज सर. कॉपी में आप अपनी ये एक्टिविटी है बेटा, है ना? Listen, just wait for a minute. I'm showing you. Sir, please.
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप ये एक्टिविटी कैसे करोगे ये मैं बता रहा हूँ आपको। यस सर। हाँ, वेट करो थोड़ा सा। यस सर। यस सर। Okay, here I am going to show you. Just look at here. सर कलेक्ट यानी क्या होता है? कलेक्ट यानी जमा करना। हर्षित। ओके, अब आप क्या देख पा रहे हो बेटा? बुक दिख रही है बे? हाँ। Yes. यस Okay. सर। Okay. So students, here in your in your यस book, सर। page number 8, just listen. Yes, listen. Put each flower carefully between the pages of an old book. जैसे आपको ये सेकंड जो पॉइंट है उसके साइड में पिक्चर दिखाई दे रहा है कि आपको हर एक फूल क्या करना है, अलग अलग पेजेस पे, यस, पेजेस पे रखना है। ऐसे कितने फ्लावर्स लोगे ये आप? दिखाई सर। 5 फ्लावर्स लोगे, ठीक है। थर्ड, प्लेस सम हेवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डेज। आपको जैसे तीसरे पिक्चर में दिख रहा होगा, सर हेवी नहीं बुक। दिखाई जा रहा। सकते क्या? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा होगा सभी को। बुक नहीं दिखाई जा रही है। मैंने अभी आपको ये दिखा रहा हूँ बेटा, ये देखिए ना। मेरे को दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है सर। नहीं दिख रही है, मुझे दिख रहा है। सभी को दिख रहा है बेटा, सभी को दिख रहा है ना। प्लेस सम Place some heavy books on top of the old book. Leave it for some days. जो बुक में आपने क्लास रखे हैं, मुझे देख दो यार, तो सभी ओके, लिसन लिसन। नहीं दिख जो रहा है। बुक में आपने, मान लीजिए ऐसी बुक है, ऐसे बुक में एक फ्लावर यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे रखा, तीसरा यहाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ। Some heavy books on it, just like this. आपको इस बुक में जो फ्लावर्स रखे हैं उस पे ऐसे वेट रखना है एंड कीप इट असाइड फॉर सम डेज। और कुछ दिनों के लिए सर ये ये नोटबुक है वो साइड में रखनी है। आप कौन सी भी पुरानी वाली नोटबुक इसके लिए यूज कर सकते हो। दिस इज एन एक्टिविटी, ओके। और आपको क्या दिखेगा कुछ दिनों के बाद? यू कैन सी, stick the placed flowers carefully in your scrapbook. Write the name of each flower. आपको इस तरह से फ्लावर्स की एक ड्राइंग वहां पे बनी हुई दिखाई देगी, है ना। हाँ सर, दिखाई दे रही है। यस, ये एक्टिविटी आप करोगे, ठीक है। और ये गूगल क्लासरूम ऐप में आप शेयर करोगे, व्हाट्सएप में नहीं। ठीक है, समझे सभी? ये यस एक्टिविटी, सर। इसके लिए आपको मैं मंडे तक का दिन दे रहा हूँ। मंडे,
On Monday, you will submit your activity in our Google Classroom app, Yes, not in sir. WhatsApp group. Okay? Is it ओके clear? Yes. अरे लिखा नहीं है ओके सर सर मुझे एक चीज After this, पूछनी है सर after this, जो only one ओरिजिनल question is चिपकाने हैं there, कागज के which we have यार to here. ओरिजिनल चिपकाने हैं या पेपर के Name in 2 words. सर ये बुक में करना है कि नोटबुक में ये बुक में कर लीजिए पहले। ये जो काम अभी मैं दे रहा हूं ये पहले बुक में कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और बाद में नोटबुक में लिख लीजिए। नेम 2 words in ओके सर each petal which you see चिपकाने और वो भी in a 5 garden. भी अलग अलग अरे इसे ड्रॉ भी करना है क्या मैंने आपको बुक में लिखने के लिए बोला पहले, बुक में सर लिख ये लीजिए। अच्छा नहीं दिख रहा अरे बच्चों पहले बुक में लिख लीजिए, बाद में अपने नोटबुक में कर लीजिए। आवेश माइक म्यूट करो अपना। सर हमारे यहाँ पर माइक वो नहीं आ रहा ओके कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे है इंसेक्ट्स, हमें लिखने हैं इंसेक्ट्स, और ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे है वो पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं? फ्लावर के अलग अलग, जैसे कैसे कैसे जैसे पत्ते होते हैं ना, उसी टाइप में फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसे पेटल कहा जाता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के नाम यहाँ पे लिख रहे हैं हम। लिख एंट, एंट लिखो एंट कॉकरोच, ठीक है। सर वो क्या लिख रखा है ऊपर आप बस ये लिखो, ये है इंसेक्ट। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे नाम लिखने हैं, ऑलरेडी सब कुछ तो लिखा हुआ है ना आपके बुक में, तो फिर क्यों पूछ रहे हो बेटा आप? ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है? बुक में लिखा हुआ है इंसेक्ट। डोंट मेक अ नॉइज। सर माइक चालू हो गया मैंगो ट्री, सर बटरफ्लाई स्पाइडर हो सकता है ना आप इंसेक्ट्स अपने में हिसाब से लिख सकते हो। यस, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, फ्लावर्स, रोज, लोटस, एक्स। Who is making noise there? विकास, आयशा, माइक म्यूट करो अपने। अब मैंने सर से बोल दिया कि हमारे यहाँ पर X, hammer, and the last birds. इसके नीचे क्या है Parrot, सर इसके peacock। अभी बच्चों देखिए, लिसन लिसन लिसन, सुनिए पहले। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स लिख सकते हो। इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं, फ्लावर्स के नाम लिखने हैं, जो मैंने लिखे वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। यू कैन राइट योर ओन एग्जांपल्स देयर। Okay, so don't ask me again and again what is there, what is that, what is after this. कुछ
कुछ समझ रहे हो आप? मैंने क्या बोला अभी? आप यहाँ यस सर, यस सर। वैभव कुछ समझ में नहीं आ रहा है शायद, वैभव है ना? यू आर सेइंग नो। सर आप यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे इंसेक्ट्स, किसी ने बोला बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, हनी बी, दे आर आल्सो इंसेक्ट्स। यू कैन राइट द नेम ऑफ फ्लावर्स में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। yes 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 you can write okay। रेखी के नीचे क्या है? रेखी के x के नीचे है ट्रॉवल। ट्रॉवल की स्पेलिंग hurry up। बस सर। मैंने हैमर लिखा है बेटा, हैमर लास्ट में है ना? और विकास यस आई हैव रिटन सर, ये नोटबुक में भी करना है क्या? यस आपको ये नोटबुक में भी करना है।